Hello friends, Saraswati Education and Medical Trust welcomes you. Standard 10, Subject Mathematics, Chapter number 1, Real Numbers. Friends, in class 10, you were introduced with real numbers which include both the rational numbers and the irrational numbers. In this chapter, we will continue our study of real numbers. For that, we will begin with two important properties of integers, which is Euclid's division lemma related with Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetics. Friends, in this chapter, first of all, let's recall the set of different types of sets of numbers. So first, let us recall it. We know that n represents set of natural number or set of positive numbers. That means in this set we can take 1, 2, 3, 4 and 5. Another one is z, set of natural number 0 and the opposite of natural numbers. So we can write z equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinity. That means you can take positive integers, negative numbers and 0. Number 3 is q, number of the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Also we can say that the collection of rational numbers. And last one is r, real numbers, the collection of all rational and irrational numbers. So friends, in this chapter we are study with Euclid's division lemma and fundamental theorem of arithmetic. Now let us start with Euclid division lemma. Euclid's division lemma is related to divisibility of integers. In simple language, it states that any positive integer a can be divided by another positive integer b in a such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. आई होप ये आपको मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया होगा, बट लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल and then we are going for the statement of Euclid's division lemma. Friends, here I have 7 coins. Now make a group of 3 coins. So you know that in one group there are 3 coins, in another group there are 3 coins, and last one will be remain. So I make a 2 groups and one will remain. See, in group 1 there are 3 coins, in group 2 there are 3 coins and one will be remain. Now how will you represent particular scenario using division? I mean, आपको अगर 7 को रिप्रेजेंट करना हो ये ऐसे 3 के 2 ग्रुप लेकर, तो डिवीजन के हिसाब से कैसे करेंगे? सो लेट अस सी. आई कैन राइट 7/3 इक्वल टू 2 and 1. ये मैंने सिर्फ लिखा है, अभी मैंने इसका रिलेशंस जो है वो बताया नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है. 7 को मैं बोलूँगा डिविडेंड, 3 को बोलूँगा डिवाइजर, 2 को बोलूँगा कोशंट एंड 1 को बोलूँगा रिमाइंडर. नाउ इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इस तरह कर सकता हूँ. सो फ्रेंड्स, 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 into 1 plus 1. That means divisor into quotient plus remainder. Now we are seeing the statement of Euclid's division lemma. Friends, statements say that given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to qb plus r. Now see the above example. 7 equal to 3 cross 2 plus 1. That is a equal to 7, quotient q equal to 3,
b equal to 2 and remainder equal to 1. That is the what I am telling you guys. It is very helpful for finding highest common factor. Now see, here the condition is 0 less than equal to r less than equal to b. That means कि r always b से छोटा ही होगा. सो अगर आपको एग्जाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हो और r b से बड़ा आता है, दैट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक इन योर एग्जाम्पल. नाउ इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. ये दूसरी तरह से मैं बोल रहा हूँ. नाउ अब आप सोचते होंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कैसे करेंगे. सो लेट अस सी द स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Example number 1, using Euclid's algorithm to find highest common factor of 175 and 112. Friends, step 1 says that applies Euclid's division lemma to a and b. Here a equal to 175 and b equal to 112. So we find whole numbers q and r such that a equal to bq plus r. That means आपको 175 को रिप्रेजेंट करना है. किस तरह से 175 को रिप्रेजेंट करें. बी की वैल्यू क्या है 112. सो आई पुट बी इक्वल टू 112. अब क्यू है, वो क्यू की आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो 175 से छोटी आएगी अगर मैं क्यू को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं. फॉर एग्जांपल मैं 112 के साथ 2 रख दूं तो 112 इंटू 2 क्या आएगा 224. दैट इज़ ग्रेटर देन 175. तो 2 नहीं चलेगा. सो मुझे 2 से छोटा इंटीजर रखना है, दैट इज मैं 1 रख सकता हूँ. क्या रखा 1. सो 175 इक्वल टू 112 क्रॉस 1 तो क्या आया 112. अब 175 में से 112 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच सकता है, दैट इज 63. तो प्लस 63. सो इस तरह से मैंने पहला स्टेप किया. नाउ फ्रेंड्स, आपको ये स्टेप कब तक करना है वो आप खास ध्यान रखें. जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ये स्टेप करना है. फिर से मैं स्टेप बता देता हूँ. आपको a की वैल्यू रखनी है 175, b की वैल्यू रखी 112. अब आप q की वैल्यू ऐसी रखो जो a से बड़ी ना हो. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता तो 224 हो जाता. सो ये आगे ही नहीं जाता. तो मैंने 1 रखा. इंटीजर्स ही रखना है, खास ये ध्यान रखें. आप 0.5 नहीं ले सकते. सो 112 इंटू 1 दैट इज 112 प्लस 63. आपको क्या मिला 175. ये आपको कहाँ तक अब ये कहाँ तक जाना है, यहाँ पे हमको 0 लाना है. बस हमारा एक ही टारगेट है, यहाँ पे 0 आना चाहिए. नाउ अनदर स्टेप. अब आपका जो दूसरा स्टेप है वो क्या हो जाएगा, ये जो 112 है ये आपका हो जाएगा a एंड b हो जाएगा आपका 63. ठीक है. तो अब 63 के पास कौन सी वैल्यू मैं रखता हूँ तो वो 112 से छोटी आएगी. अगर मान लो कि मैंने 2 रखा तो क्या आएगा 62 इंटू 63 इंटू 2 दैट इज 116 विच और ग्रेटर देन 1. सो मुझे क्या रखना पड़ेगा 1 दैट इज 63. कितने बचे 49. ठीक है. अब आपका जो a है वो क्या हो गया 63 एंड b जो है वो क्या हो गया 49. अब 49 को अगर मैं के साथ कोई वैल्यू रखना चाहूँगा मल्टीप्लिकेशन करके तो 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि 2 9 8 इंटू 4 8 98 हो जाएगा. सो मुझे 1 ही रखना पड़ेगा. दैट इज 1 प्लस कितना बचा 14 दैट इज 14. अब
अनदर 49 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज़ ए की जगह, बी की जगह 14, 14 के साथ 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 14 थ्री ज़ा कितना आएगा, यहाँ पे आपको 49 लाना है, 14 थ्री ज़ा 42, सो 14 थ्री ज़ा 42 प्लस कितना बचा 7, ठीक है। अब आप ए की जगह किसने ली 14 ने, बी की जगह 7 ने, अब 7 टू ज़ा 14 प्लस, फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 0 आ गया। सो इस तरह से इसका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आया किसका 175 एंड 112 का, वो क्या आया 7, ठीक है। 7 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। फिर से आपको क्या करना है, ए एंड बी फाइंड करना है और इसको ए बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया 0। सो और ये जो आपको मिलता है लास्ट 7 वो हमारा क्या है HCF। इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो स्टेप 2 हुआ वो क्या हुआ, स्टेप 2 आपका ऐसा हुआ, इफ आर इक्वल टू 0 देन बी इज अ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ स्टेप 1। क्लियर? Now we are going for the another example, example number 2. Example number 2 is 135 and 225. Now here आपको जो a लेना है वो बड़ी वैल्यू लेनी है, that is a equal to 225 and b equal to 135. Now 225 can be written as 130, आप यहाँ पे ऐसे पहले लिख दो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ b, अब q की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो बढ़ जाएगी, दैट इज 270 हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, दैट इज 1, दैट इज 135, और बचेगा क्या 225 में से 90, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 135 इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू 90 टू ज़ा 180 हो जाए, तो फिर से मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, दैट इज़ 90, क्या बचा 45, फिर से ये 90 यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 90 इक्वल टू ये 45 यहाँ आ जाएगा, 45 इंटू 2 प्लस 0, सो रिमाइंडर इक्वल टू हियर रिमाइंडर equal to 0, therefore 45 is highest common factor of 135 and 225। ओके फ्रेंड्स, आपको ये एरोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप हर एक स्टेप के बाद ऐसा लिख सकते हो, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। सेम वे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45, एंड लास्ट में हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0 देन 45 इज़ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड एग्जाम्पल। Example number 3 is 867 and 255. Here a is equal to 867 and b equal to 255. So now apply the division lemma, a equal to bq plus r. So we can write 867 equal to 255 into blank plus blank. Okay, 255 को अगर मैं 2 से
मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 255 इंटू 2 दैट इज आपको मिलेगा 510। नाउ 255 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा 3 5 जा 15 765 दैट इज 765। सो मुझे यहाँ पे 3 ही रखना पड़ेगा। अगर मैं 4 करूँगा तो बढ़ जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा। सो 255 इंटू 3 दैट इज 765 बचे कितने 10। ठीक है। नाउ यू कैन राइट सिंस रिमाइंडर is not equal to 0 we apply division lemma to 255 and 10। सो नाउ मैंने जैसे एरो करके बताया 255 यहाँ पे इक्वल टू 102 into blank plus blank. Now 102 into 2 that is 204, 102 into 3 that is 306। तो आपको यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा that is 2। तो यहाँ पे आएगा 51। अगेन सेम 102 आप यहाँ पे ला इक्वल टू 51 यहाँ पे आएगा इंटू ब्लैंक दैट इज 51 इंटू 2 102 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 51 दैट इज देयरफॉर HCF ऑफ आप ऐसे लिख सकते हो HCF ऑफ कौन कौन किसका HCF फाइंड करना है 867 एंड 255 इक्वल टू 51। तो इस तरह आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से फाइंड कर सकते हो। होप वर्कशीट में दिए गए एग्जाम्पल आप खुद करोगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे दूसरी मेथड पे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।